Hello class, welcome back. Class exercise 6.5 was going on, and the question number 21 I'm going to start. And the question is it's just quite very much similar problem from question number 20, but in question number 20 that was given there the volume was maximum, okay, and the surface area was constant in question number 20 if you read. And now here in question number 21, what is given there? It is enclosed of a given volume, means the volume is constant. In this question the volume is constant and the surface area is minimum, right? The two things now we have, right? We will make a formula, we will make a function for surface area, because it is mentioned here surface area is minimum, okay? So the volume is, which is constant, and the V is 100, and that is equal to pi r square h, means it is constant, volume is constant, clear? And we have to find the first thing is given. The second thing is that the surface area is minimum. Surface area is minimum. Is minimum. And we are discussing this question for cylinder, for right circular cylinder. It is mentioned here for all closed cylindrical cans, right circular cylinder which enclose a given volume 100 centimeter cube, and find the dimension. We have to find the dimension. So we have to find the height and radius, right? And I'm drawing figure 1. It is R, it is S, right? So class, I'm going to start this question. Where the V is pi r square h and the surface area is minimum. First we will make a formula for surface area. So from this equation 100 is equal to pi r square h, we will find the value of h. So the h is 100 upon pi r square, right? It is h. And the surface area is 2 pi r square plus 2 pi r s, right? Now put the value of h is here, 2 pi r square plus 2 pi r and 100 upon pi r square. Pi cancel, r cancel. Now it is 2 pi r square and 200 upon r. Clear? So now this is the s. Now we have function why we have already been back make s function के बाद क्लास हम क्या करते हैं, फंक्शन को एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो हमारा सेम प्रोसेस उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे. हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था. क्लास क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, हम क्लास फास्ट वे में करेंगे. तो ds upon dr it is 4 pi r and it is minus 200 upon r square. क्लास एक चीज आप लर्न कर लीजिए, 1 upon r का डिफरेंशिएशन इट इज minus 1 upon r square, राइट? अगर आप इसको ddx या ddr कर रहे हैं तो इट इज minus 1 upon r, ठीक है ना? जो पावर यहाँ पर होती है उसका एक बार आप बढ़ाकर आप यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो ये आप कर लेंगे, x पावर n से आप x पावर n से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो क्लास नाउ इट इज ds upon dr. Now I liquid ds upon dr is equal to 0, 4 pi r minus 100 upon 200 upon r square is equal to 0. Okay class? Now find r from here. हम find करेंगे critical point. 4 pi r is equal to 200 upon r square. क्लास r को मल्टीप्लाई करेंगे, r क्यूब फॉर्म होगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद 4 और ये हो जाएगा आपका 50. It is 50 upon pi. Okay, so the r cube is 50 upon pi, and r will be 50 upon pi to the power 1 upon 3, and this is the critical point. ठीक है क्लास? ये आपका है critical point. क्लास आप लास्ट प्रोसेस इस पूरे प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसमें कोई और बहुत नई चीज नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की. You can do this question by the previous method what I will explain you. Now this is the critical point. अब next step क्या है? d2s upon dr2, right? इसको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना. आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया,
क्लास ये आपका फर्स्ट है, इसको आप कैसे करेंगे, तो नाउ इट इज 4 पाई, ये 4 पाई हो जाएगा, r1 हो जाएगा और ये 2 ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 400 अपॉन r क्यूब। ओके, इट इज d2s अपॉन dr2। अब इसमें हम r क्यूब की वैल्यू प्लेस करेंगे तो r की वैल्यू ये है, r क्यूब की वैल्यू 50 अपॉन पाई है, प्लस यहाँ पर 50 अपॉन पाई प्लेस करेंगे। प्लस देखिए मैंने आपको बताया ना कि अरे आपको इवैल्यूएट करना है कि जो आपका d2 बाय dx2 है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको वैल्यू इवैल्यूएट करना हमारा एम नहीं है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए r क्यूब की वैल्यू पॉजिटिव है, ये होल एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव है, 4 पाई प्लस 400 अपॉन r क्यूब मींस द होल वैल्यू जो आपका पूरा क्या कहते हैं ये जो d2s अपॉन dr2 है ये आपका आएगा पॉजिटिव, इट इज मोर देन 0, ठीक है। तो क्या से दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, बट इसमें कोई एम इसका नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 50 एंड नाउ इट इज पॉजिटिव। So I'll write as, we will write as s means इसका आपने फंक्शन बनाया था s has a local minima at r is equal to 50 upon pi to the power 1 upon 3, ठीक क्लास। तो ये क्लास क्या हो गया, ये जो आपका r हो गया, आपका हो गया लोकल मिनिमा, और क्लास गिवन ये था फाइंड द डायमेंशन ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया, मींस सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, वहां पर आपको फाइंड करना है डायमेंशन। तो डायमेंशन आपका r आ गया क्लास, तो रेडियस आ गया। अब रेडियस से आप क्या क्लास फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हाइट, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन क्लास आपको दिख रहा है h is equal to 100 upon pi r square, अब इसकी हेल्प से हम h फाइंड करेंगे, ओके क्लास। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द हाइट इज 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्लास देखिए r की वैल्यू ये है 50 अपॉन पाई टू द पावर 1 अपॉन 3, अगर आप r स्क्वायर फाइंड करेंगे तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आप काट दो, इस पूरे को आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर क्लास 2 आ जाएगा, तो 50 अपॉन पाई टू द पावर 2 अपॉन 3, क्लास ये 1 अपॉन 3 था, आपने यहां पर स्क्वायर दो साइड स्क्वायरिंग किया, यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 upon 3 2/3, ठीक है। तो आपका हाइट आ जाएगा 100 अब क्लास ये जस्ट इट हैज ओनली कैलकुलेशन, इसमें क्या क्लास कैलकुलेशन रह गया है, पाई एंड r स्क्वायर इज 50 अपॉन पाई टू द पावर 2 अपॉन 3, 1 बाय 1 क्लास सॉल्व कर लीजिए इसको, ये क्लास आपका हो जाएगा। देखिए क्लास ये पाई है और ये पाई टू द पावर 1 अपॉन 3, ये दोनों पाई सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 पाई एंड पाई टू द पावर, आप इन दोनों को क्लास ब्रेक कर दीजिए। सो क्लास इसके बाद देखिए 100 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई टू द पावर 2 अपॉन 3, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप इस 100 को क्लास आप इसको लिख लीजिए 2 into 50 अपॉन पाई ऑफ ब्रैकेट, ठीक है ना। 100 को आपने ब्रेकेट 2 into 50 पाई को आपने यहाँ ब्रैकेट में क्लोज किया, और ये जो डिनोमिनेटर में 50 अपॉन पाई टू द पावर 2/3, जब इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, जब शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। सो नाउ इट इज 50 अपॉन पाई टू द पावर -2 अपॉन 3, ठीक है। 2 into क्लास बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर -2/3 है, इट इज 50 अपॉन पाई एंड 1 -2/3, इट इज 2 into 50 अपॉन पाई टू द पावर 1 अपॉन 3, ओके क्लास। तो आप क्या देख रहे हैं कि द रेडियस वाज, इट इज द रेडियस, ओके, एंड इट इज द हाइट, राइट। सो द हाइट इज 2 times of 50 upon pi to the power 1 upon 3, it is the height and this is the radius, that it is the required answer. Now class see the question number 22. Class the question is class मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्लास आपने एक वायर लिया, इट इज ऑफ लेंथ 28 मीटर, क्लास इसको आपने 2 पार्ट्स में कट किया, राइट। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज x एंड द सेकेंड पार्ट इज 28 - x। क्लास आपने इसके 2 डायमेंशन बना लिए, x एंड 28 - x।
आपने वन पार्ट से बनाया स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक आपका फॉर एग्जांपल एक पार्ट x हो गया और एक पार्ट आपका 28 माइनस x हो गया। आपने फर्स्ट पार्ट से बनाया स्क्वायर, आपने इससे एक स्क्वायर बना लिया, राइट, और आपने इस पार्ट से बना लिया सर्कल। क्लास हो गए। अब आपको कंडीशन ये गिवन है कि आपको इन वायर्स की लेंथ फाइंड करना है। जो आपको x है, जो आपने x लेट किया है, आपको x फाइंड करना है सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो दोनों का एरिया मिनिमम हो। अब क्लास देखिए, अगर आप इस पर थिंक ओवर करेंगे आप इस प्रॉब्लम पे, तो आपको बहुत सारे इसमें मतलब एक टाइप का कह सकते हैं इंजीनियरिंग में कहीं न कहीं सम किसी भी मैनर में यूज हो सकता है कि आपको एक क्वांटिटी गिवन है, उस क्वांटिटी को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक क्वांटिटी से एक क्वांटिटी लाना है, एक क्वांटिटी से कोई दूसरी चीज फॉर्म करना है, और जो कंबाइंड एरिया है वो दोनों का मिनिमम होना, दोनों कंबाइंड एरिया दोनों का मिनिमम होना चाहिए। तो प्लस पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा कि हम इन दोनों का एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक क्लास, ये कैसे करेंगे देखिए। अब जैसे कि जो हमने यहाँ पर लेट किया है, जो आपके सामने है, उसमें जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है क्लास वो क्या है, मैं मेंशन कर देता हूं। जो आपका पेरीमीटर है स्क्वायर का वो है x, ओके। और इसका जो आप लेंगे, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इट इज 28 माइनस x, ओके क्लास। ये आपका हो गया, ये x हो गया 20। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको x इसको 28 माइनस x यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। अब क्लास इसमें आपको इसका सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालना है, रेडियस से आप सर्किल फाइंड। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है क्लास, इन प्रॉब्लम में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कोई लॉजिक नहीं है क्लास, देयर इज नो एनी डिफरेंट लॉजिक, इट इज नॉट अ टफ प्रॉब्लम, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें जो टफ है वो है थोड़ा सा कैलकुलेशन, जिसको आपको स्लो मोशन में थोड़ा ध्यान से करना है। तो क्लास देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये आपका होता है क्लास 4 इंटू साइड, एंड दैट इज इक्वल टू x। साइड कितना आ जाएगा क्लास, साइड आपका आ जाएगा x अपॉन 4, ओके। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा क्लास, एरिया ऑफ स्क्वायर इज x अपॉन 4 ऑफ स्क्वायर। क्लियर, अच्छा जी। नेक्स्ट आप आइए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r and that is equal 28 minus x, ओके। यहाँ पर सरकमफ्रेंस 28 माइनस गिवन है, यहाँ से आप r फाइंड करिए, r आपको 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। क्लियर, अच्छा। अब इसका आप एरिया फाइंड करिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा क्लास, सीधा आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इसमें मिनिमम क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज मिनिमम। तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो इन दोनों के एरियाज को ऐड करके हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, फंक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई एंड आर स्क्वायर मींस 28 माइनस x ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई ऑफ होल स्क्वायर मींस 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई हैज कैंसिल आउट, ओके। सो फाइनली 28 माइनस x ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ओके क्लास। तो ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब आपका क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम फॉर्म करेंगे एरिया ऑफ कंबाइंड एरिया, दोनों को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, x स्क्वायर अपॉन 16 कर लीजिए क्लास इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 28 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। क्लियर, अच्छा। अब हम यहाँ पर डी अपॉन dx करेंगे, जो अब हम अपने प्रोसेस में आ गए। तो ये आपका हो जाएगा 2x अपॉन 60 दैट इज x अपॉन 8 एंड प्लस यहाँ पर चेन रूल ले लीजिए, 2 पहले आगे ले आइए, 28 माइनस x एंड माइनस 1, 28 माइनस का डिफरेंशिएशन माइनस 1 आएगा अपॉन 4 पाई विल बिकम एज सेम, राइट, ओके। अच्छा अब क्लास देखिए, इस स्टेप के बाद आपको इस वाले स्टेप को भी करना है, एंड आफ्टर दिस यहाँ के बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। मैंने एरो शो कर दी कि आपको सिंबॉलिकली आप समझ जाए। तो क्लास ये डी अपॉन dx आ गया। अब यहाँ से आपको x फाइंड करना है और उस x को हम
d2a अपॉन dx2 में प्लेस करेंगे और हम देखेंगे क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ओके क्लास, तो क्लास थोड़ा सा इसको और आप सिंपलीफाई कर लीजिए। इट इज x अपॉन 8 माइनस, प्लस ये माइनस आ जाएगा, 1 सा एंड इट इज 2 सा, 28 minus x upon 2 pi. Okay class, now find x from this equation. class अब इसके बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, don't be confused class। यहाँ पर आप इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, it is x dA upon dx is equal to 0। okay, तो क्लास ये हो जाएगा आपका x upon 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, पहले इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए। 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 1 जा 4 जा एंड इट इज 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज पाई इंटू एक्स इज इक्वल 28 इंटू 4 112 112 minus 4x। we have to find x, प्लस अब x फाइंड करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, प्लस ये हो जाएगा पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 112, x टेकिंग कॉमन, 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू 112 अपॉन 4 प्लस पाई। क्लास ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, राइट। सो नाउ वी हैव क्रिटिकल पॉइंट, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारा फाइंड हो गया। अब क्लास हम लोग क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे d2a अपॉन dx2। तो ये क्लास d अपॉन dx है आपका, ये फाइनली आ गया। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लास पहले इसको नोट कर लीजिए। क्लास कंफ्यूज होते हैं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट राइट दिस वन, आफ्टर दिस राइट दिस वन, ये एरोस बना हुआ है। क्लास इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इट इज एरिया, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आना है। क्लास यहाँ मैंने dA by dx नोट कर लिया है। dA by dx is x by 8 minus 28 minus x upon 2 pi। Now I am going to find d2a upon dx2। d2a upon dx2 क्लास इसकी वैल्यू 1 upon 8 होगी, राइट, माइनस 28 1 upon 2 pi, ये कांस्टेंट है, राइट, ये आ जाएगा ऐसे ही। जब 28 माइनस s को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ गया -1। नाउ द फाइनल वैल्यू इज 1 upon 8 plus 1 upon 2 pi, right। क्लास दिस इज द इट इज द पॉजिटिव वैल्यू। d2a upon dx2 क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है पॉजिटिव। आप यहां पर लिख लीजिए फाइनली d2a upon dx2 is positive and x is equal to 112 upon 4 plus 5। और क्लास ये क्या हो गया, hence now it is local minimum। now it is local minimum 112 upon 4 plus 5, now it is local minimum। ये local minimum हो गया है। अब आपको दोनों डायमेंशंस फाइंड करना है। जैसे एक डायमेंशन आपका x था, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आपको फाइंड करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, 28 minus x, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्लास ये फर्स्ट पार्ट है y का, और now the second part is 28 minus x means 28 minus x, x is 112 upon 4 plus 5, take LCM 112 and plus 28 pi minus 112 upon 4 plus 5, it will be cancelled out। Now the answer is 28 pi upon 4 plus 5, right? Okay class, this is the required solution। Thus the first answer is this, and the second answer is this one। Okay class, this is the final answer।
So now class question number 23. Prove that the volume of the largest cone that can be described in a sphere. Inside the sphere, we draw one cone, and the volume of cone that must be largest, and in a sphere of radius r. Meaning, what does it mean of this sentence? In a sphere of radius r, meaning is that the volume of a sphere is constant, means the radius of a sphere is constant, it will not change, is 2/8/27 of volume of sphere. So class, यहाँ पर just very much it's a new type what the question you are doing. So this is the very new type problem. So class देखिए इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें स्टार्टिंग क्लास ये कि आप पहले एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे. इस स्फीयर के अंदर आपने एक कोन ड्रॉ किया. क्लास ये आपने कोन ड्रॉ किया, राइट. अब क्लास कोन में इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर. सब 3D फिगर है क्लास. इट इज अ 3D फिगर, यू इमेजिन. सो नाउ इट इज द हाइट. ये हाइट आपकी हो गया, राइट. हाइट आपकी h हो गई, हाइट ऑफ कोन h. तो क्लास ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर. It is portion from this center to this line. It is distance x, okay, and it is also the radius of sphere, and it is the radius of cone. Small r is the radius of cone, capital R is the radius of sphere, right? So some few things firstly we need to mention here to avoid any confusion. Class radius of sphere is capital R, and radius of cone is small r. Clear? Okay. So class अब देखिए यहाँ पर मेंशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मीनिंग इज दैट कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो लार्जेस्ट है. तो जो फंक्शन हम बनाएंगे वो बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए. क्लियर? अच्छा जी. अब इसके बाद थोड़ी सी और मैथमेटिक्स इसमें यूज करना है. इसमें मैथमेटिक्स ये यूज करना है कि आप पहले हाइट ऑफ कोन फाइंड करिए क्लास. हाइट ऑफ कोन, यहां से इस फिगर से हाइट ऑफ कोन क्या होगी? हाइट ऑफ कोन आपकी होगी x प्लस कैपिटल R. x प्लस कैपिटल R. ओके. प्लस इस ट्रायंगल में अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट यू विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. क्लियर? अच्छा जी. अब नाउ अब फंक्शन पर आ जाए और क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है इट इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. क्या आपको प्रूफ दैट में करना है. तो हम क्लास अपने जो हमें लाना है, तो प्रूफ करना है, उसको यहां मेंशन कर लें. टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, C फॉर कोन इज इक्वल 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, S फॉर स्फीयर, राइट. क्लास इस चीज को आपको प्रूफ करना है. ओके क्लास, क्लियर? अब देखिए इसकी वर्किंग में आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन मींस आप इसको कैपिटल में से रिप्रेजेंट कर लीजिए. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h. क्लियर? अच्छा जी. तो अब आप यहां पर v इज इक्वल 1/3 पाई एंड ये क्लास आपका जो h है, h क्या है? हाइट इज x प्लस r. आपने रखा है x प्लस r एंड r स्क्वायर. आपने इस पाइथागोरस से, पाइथागोरस जो आपने रिलेशन फॉर्म किया था, स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर. यहां से आप r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. क्लियर? क्लास अब यहां पर आप देखिए क्लास r कांस्टेंट है. इसमें लिखा था स्ट्राइप इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, राइट. मींस जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कैपिटल R है. कैपिटल R आप लेंगे कांस्टेंट. ओके. तो क्लास इस इक्वेशन जो हमने फॉर्म किया है, यहां पर वेरिएबल क्या है? इसमें खाली वेरिएबल x है. अच्छा क्लास, यहां पर एक और, यहां पर दो एक्चुअली यहां पर दो पाथ यहां से ब्रेक होता है. एक आपको पॉजिटिव वे में, मतलब पॉजिटिव क्या, आपको सिंपल कैलकुलेशन देगा, एक आपको टफ कैलकुलेशन देगा. प्लस अब यहां पर जो आपने लिखा 1/3 पाई r स्क्वायर h, मैंने यहां पर h को लिखा x प्लस r, h इज इक्वल टू x प्लस r, एंड स्मॉल r को यहां से मैंने चेंज कर लिया. ओके क्लास. आप ये भी कर सकते थे, आप यहां पर ये करते कि h को h रहने देते,
ठीक है, और या h को आप x प्लस आर कर देते, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करके आप यहां प्लेस कर लेते, h को आप लिखते हैं x प्लस आर एज सेम लिखते, यहां पर जो x मिल रहा है इस x को वैल्यू निकाल तो आपका आता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऑफ रूट। प्लस यहां पर अगर आप इस इक्वेशन में से x को रिमूव करते और स्मॉल r को लाते तो क्लास क्वेश्चन तो वो भी करेक्ट होता, बट प्रॉब्लम ये होती कि आपका जो कैलकुलेशन वर्क है वो थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता। यहां पर आपको इजी कैलकुलेशन मिलेगा, राइट। तो यहां पर क्लास ये दो बात है कि आप पॉसिबली आपने यहां पर सीख लिया कि आप किसे अपने एग्जामिनेशन में किसको रिमूव करेंगे। प्लस इस क्वेश्चन में आप स्मॉल आर को आप रिमूव करेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी रहेगा। अब क्लास हमारा जो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। आपने क्या dv बाय dx 1/3 पाई कांस्टेंट है, आप यहां लगा लीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इट इज -2x एंड सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इट इज 1, ओके। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 पाई -2x का होल स्क्वायर -2xr प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अच्छा जी, क्लास इसको और फर्दर सॉल्व करें आप तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर -3 एंड -2 एंड -1, यहाँ पर 2xr आ गया और यहाँ पर आ जाएगा -3x स्क्वायर, क्लियर। अच्छा क्लास देखिए, ये आपका क्या कहते हैं, ये एक आपका dy बाय dx आ गया। अब हम dy बाय dx को इक्वल टू 0 करेंगे, dv बाय dx इज इक्वल टू 0, इस पर टर्म को आप विल इक्वल टू 0, क्या हमको मिलेगा देखिए इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर -2xr -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लास एक कांस्टेंट है, जब 0 के पास आएगा तो 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव आर स्क्वायर -2xr। क्लास हम ये क्यों कर रहे हैं, हम dy by dx इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो नाउ वी हैव r स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये एक बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक से आपको x फाइंड करना है क्लास, राइट, x फाइंड करना है। तो इसमें x फाइंड करने के लिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप अगर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे x स्क्वायर लास्ट में लिखा हुआ है, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इस सम को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ये आपके कन्वीनियंट के लिए है। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xr माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। 3x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 3xr माइनस xr माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लास आप इसके बाद इसको यहां देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसके बाद क्लास क्वाड्रेटिक को आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर आप 3x कॉमन लीजिए, तो नाउ वी हैव x प्लस r and in the last term we take common it is 2xr, थोड़ा सा ये गलत हो गया, फिर सही करिए इसको, it is 1xr minus r square is equal to 0, right। so not a common r, last two terms से आप r common लीजिए, minus r, now we have x plus r is equal to 0, okay। 3x minus r and x plus r is equal to 0, from these two bracket we have x is equal to minus r and x is equal to r by 3। it is not possible, नेगलेक्ट करिए क्योंकि x डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, आप करिए नेगलेक्ट। तो क्लास ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, ओके क्लास क्लियर। अब हम क्लास फाइंड करेंगे d2v अपॉन dx2, ठीक है। हमारा ये dv by dx है, मैंने एकदम सॉल्व करके यहां पर लिखा है। अब यहां हम फाइंड करेंगे d2v by dx2, ओके क्लास। 1/3 कांस्टेंट है, आप इसको आगे लिख लीजिए, ठीक है। r स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -2r एंड यहां पर हो जाएगा -6x, राइट क्लास। आप अगर माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया 2r प्लस 6x, ओके क्लास। यहाँ पर r आप x क्या है, x आपका r/3 है, जब आप x को यहाँ प्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना क्लास, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव। तो आप लिखेंगे at x is equal to r/3
d2v by dx2 is नेगेटिव, प्लस नेगेटिव आ गया। तो x r by 3 क्या हो गया? x r by 3 आपका हो गया लोकल मैक्सिमा, राइट? सो द लोकल मैक्सिमा इज the function has local maxima at, बोलते हैं ऐसे, the function has local maxima at x is equal to r by 3, right? अब हम यहाँ पर क्लास इसको खाली आपको अंडरस्टैंड करा देते हैं कि x by 3 क्या है, x equal to r by 3 क्या है, x equal to r by 3 क्या है, ये आपका लोकल मैक्सिमा है। हुई क्लास क्लियर? अब क्लास हमें क्या करना है, देखिए अब हमारा लोकल मैक्सिमा हमको फाइंड हो गया। अब हमें एक रिलेशन फाइंड करना, हमारा मेन वर्क ये है क्लास कि हम कोण के क्या कहते हैं वॉल्यूम को 8/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम प्रूफ कर दें। वो क्लास आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? अब क्लास इसके बाद देखिए मैं यहां पर इसको एवेल्युएट करता हूं, ठीक है? इस पार्ट में मैं एवेल्युएट करूंगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर आप यहां से करेंगे, इसके बाद आप यहां पर कॉपी करेंगे। क्लास देखिए ये आपका है वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट? इस इक्वेशन में मैंने यहां प्लेस किया 1/3 पाई r square minus x square and r plus x. Now put the value of x. It is r by 3. इसको आप यहाँ प्लेस करिए, तो it is 1/3 पाई r square minus r square by 9 and r plus r by 3. क्लियर? सॉल्व करिए इसको खाली कैलकुलेशन क्लास में। ये आपको हो जाएगा 8r square by 9 and ये आपको हो गया 4r by 3। क्लियर? अब क्लास जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8/27 ब्रैकेट 4/3 पाई r क्यूब। क्लास व्हाट इज दिस? 4/3 पाई r क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट? सो नाउ 8/27 इज इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लास ये हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो गई, राइट? क्लास v क्या है? v इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं इसका लिख देता हूं, v इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट? ये वॉल्यूम ऑफ कोन था, इज इक्वल 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इंप्लाइंग दैट आप फिर से लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दिस इज आवर फाइनल प्रूविंग। क्लास ये हमारा टर्म प्रूफ होगा। क्वेश्चन ओवर क्लास।